ڈسٹرکٹ کا جو انفراسٹرکچر تھا اس میں منی سیکٹریٹ اس وقت انکمپلیٹ تھا. میرے ٹینیور میں کمپلیٹ ہو گیا. عمر صاحب نے وہاں سنگ بنیاد رکھا. بعد میں پہلے رکھا تھا کسی نے سنگ بنیاد, تو کمیشن انہوں نے کیا ہے. جو آپ نے مسائل گنے وہ واقعی وہاں مسائل ہیں. شاگنڈ ہو, بون ہو, کنیاری ہو, خود نائد خے کی بات آپ کرو گے جو مطلب ایک سینٹرل پلیس ہے اس سارے بلاک کی, یا گنڈ جہانگیر, جتنے بھی چھوٹے چھوٹی بستیاں ہیبیٹیشنز, یہ مسائل ہیں اور میری پریارٹی پہ رہیں گے. میں ایشور کرتا ہوں وہاں کے تمام لوگوں کو آپ کے مادھیم سے کہ ہر ایک چھوٹی بڑی چیز کو دھیان سے دیکھا جائے گا اور درد سے دیکھا جائے گا. اور آج اگر الیکشنز ہوں گے بہت فیئر ہوں گے. یہ نہیں ہوگا کہ وہ ایموشنل ویو کے لیے بھی سپیس دے دو کسی کو. آواز اور تصویر کی دنیا کے دوستوں کو سہیل مقبول کا پیار بھرا سلام پیش ہو. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں جموں کشمیر کے گھر گھر کی آواز کشمیر گلوبل ٹائمز, اور کشمیر گلوبل ٹائمز سے میں آپ کا میزبان سہیل مقبول. آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ جو مہمان گفتگو موجود ہے کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. یعنی ایک سینئر پولیٹیشین ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایکس MLA بانڈی پورہ کے اندر بھی رہ چکے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں جناب نظام الدین بٹ صاحب کی. اگر نظام الدین بٹ صاحب کی بات کریں, یہاں پہ الائنس کینڈیڈیٹ ہے خاص کر کانگریس اور نیشنل کانفرنس کے بانڈی پورہ کانسٹیچوئنسی کے اندر. اور یہ بات بھی آپ بخوبی جانتے ہیں کہ قریباً 10 سال کے بعد جموں کشمیر میں اسمبلی انتخابات ہونے جا رہے ہیں, اور کئی سارے ہم امیدواروں کے پاس بھی گئے, ان کا کیا کچھ منشور ہے اس اسمبلی انتخابات میں, ان سے جو ہے وہ آپ تک باضابطہ طور پر ہم نے پہنچایا. تو آج جو ہے ایکسکلوسیو میرے ساتھ نظام الدین بٹ صاحب, ان سے کئی سارے سوالات کرنے کی کوشش کریں گے. تو سب سے پہلے نظام صاحب آپ کو ویلکم کرتے ہیں پروگرام میں. شکریہ آپ کا موقع دے دیا آپ سے بات کرنے کا. تو پہلا انٹرویو ہے آپ سے. سب سے پہلے آپ کے اس پولیٹیکل جرنی کے حوالے سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ سیاست جو ہے کہاں سے سٹارٹ ہوئی اور کب سٹارٹ ہوئی. 1978 سے میں ایکٹیو پالیٹکس میں آیا ہوں ایز اے فاؤنڈر ممبر آف پیپلز کانفرنس. اس سے پہلے بھی سیاست سے جڑے رہے ہیں, بٹ وہ ادھر ادھر کے سکیٹرڈ جانٹس تھے, لیکن ریگولر پالیٹکس ایز پیشن 1978 سے. اور آبجیکٹیو یہی رہا ہے کہ اس زمانے میں ہمارا علاقہ بہت پسماندہ تھا اور کشمیر میں نیشنل کانفرنس کا بول بالا تھا. ایک طرح سے ایک ڈیسنٹ وائس کی اس وقت ضرورت تھی, تو ایک ڈیسنٹ وائس کے طور پیپلز کانفرنس اس وقت ابھری. اس کے ساتھ میں جڑا رہا لون صاحب کے ساتھ. تو وہاں سے میرا سفر شروع ہوا. لیکن جب گن کلچر شروع ہو گیا, یہاں انسرجنسی ہو گئی, تو میں نے کنارہ کشی کی. اس سے پہلے تو پالیٹکس میں آنے سے پہلے میں میڈیا میں تھا, آل انڈیا ریڈیو میں تھا. پھر میں واپس 90 میں میڈیا کے ورلڈ میں ہی چلا گیا. شروع کیا سفر لوکل ڈیلیز ویکلیز سے. بعد میں آپ کے الیکٹرانک میڈیا سے جڑا رہا, ETV کا نیوز چیف رہا یہاں بھی اور حیدرآباد میں بھی. اس کے علاوہ ارنا کے ساتھ بھی جڑے رہے, NH کے ساتھ بھی جڑے رہے. 10 سال وہاں دینے کے بعد مفتی صاحب چیف منسٹر تھے, وہ حیدرآباد آیا. آئی واز پوسٹڈ ان حیدرآباد. وہاں انہوں نے کہا کہ آپ کی پالیٹکس میں ضرورت ہے, وہاں لوگوں کو تکالیف ہے, ہم ان کو ان تکالیف سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں, آپ ہمارے ساتھ آؤ. میں نے پارلیمنٹ کا چناؤ لڑا 2003-4 کا. وہ بڑے تھن مارجن سے ہم ہار گئے, 6-7 ہزار سے, اگر مجھے سیدھے یاد ہے تو. اس کے بعد پھر دوبارہ اسی کے ساتھ جڑے رہے, PDP کے ساتھ. بہت اچھا کام کیا مفتی صاحب کی قیادت میں. MLA رہے, MLC رہے, پھر وقف بورڈ کے ساتھ بھی جڑے رہے. اور پھر جو 2019 کا واقعہ پیش آیا تو اس میں اتھل پتھل ہو گئی, کئی پارٹیاں بکھر گئیں, اس میں PDP بھی بکھر گئی. مجبوراً مجھے وہاں سے نکلنا پڑا. I was the last to leave. میں نے سوچا کہ چونکہ PC کے ساتھ وقت گزارا ہے جوانی کا, اور لون صاحب کے ساتھ ایک عقیدت بھی تھی, تو واپس PC میں جانا مناسب سمجھا اس وقت. لیکن وہ سفر بہت مختصر رہا. واپس آئے, اب انڈیپینڈنٹلی بانڈی پورہ میں کام کیا. لیکن اس کے بعد یہ جو نئی ڈیولپمنٹ ہو گئی
अलायंस ने मुझे अपना कैंडिडेट चुना, कांग्रेस ने मुझे इज़्ज़त दे दी, जी फारूक साहब ने भी इज़्ज़त समान से मुझे बुलाया, प्यार से बुलाया, दोनों ने हमारे सर पे हाथ रखा। आज मैं अलायंस का कैंडिडेट हूँ और इसी मंशा के साथ कि लोगों की खिदमत हो। तो सर अगर बात करें, आप बांडीपुरा में एमएलए भी रह चुके हैं, तो जब आप यहाँ पे एमएलए थे तो कौन से बड़े प्रोजेक्ट जो है अपने बांडीपुरा में लाए? देखिए, ये एक कंटिन्यूटी होती है। मैं ये नहीं कहूँगा मैंने ही सब कुछ किया, जी एक कंटिन्यूटी होती है, प्लानिंग एक प्रोसेस होता है। जी। सेंट्रल प्रोजेक्ट्स हूँ, डिस्ट्रिक्ट लेवल के प्रोजेक्ट्स हूँ, स्टेट लेवल के प्रोजेक्ट्स हूँ, तो वो एक लंबा सफ़र भी होता है। कई प्रोजेक्ट 10 साल में पूरे होते हैं। किसी एक एमएलए ने बेचारे ने किया होता है प्रोजेक्ट अपने इलाके में अप्रूव, समझा होगा कि ये लोगों की ज़रूरत है, वो कल्मिनेशन पे नहीं पहुंचता है, दूसरी टेन्योर में पहुंचता है। तो यहाँ उस वक्त एक बड़ी चीज़ हो गई थी, अचानक गुलाम नबी आज़ाद की सरकार ने 10 डिस्ट्रिक्ट दे दिए थे जम्मू कश्मीर में, और वज़ीर कमीशन में मैंने भी एक रोल अदा किया था एज ए यंग बॉय, यंग यूथ लीडर, और मैं लायर भी था उस ज़माने में। तो मैंने वहाँ प्लीड किया था वज़ीर कमीशन में कि बांडीपुर बीइंग ए बैकवर्ड इलाका, और इसकी जो टोपोग्राफी है और इसकी हिस्ट्री जो है, जो हमारा आलू सा रहा था एक सेंटर, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर, तो इन सब चीज़ों को मैंने वज़ीर कमीशन के सामने रखा भी था। तो अचानक गुलाम नबी आज़ाद ने साहब ने सेंटर की मर्ज़ी से 10 डिस्ट्रिक्ट दे दिए, उसमें बांडीपुर पहले नंबर पे था, क्योंकि वज़ीर कमीशन में वही एक डिस्ट्रिक्ट रह गया था उस ज़माने में। तो जब डिस्ट्रिक्ट आ गया तो एक बहुत बड़ा बूम आया इंफ्रास्ट्रक्चर के, जैसे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए बिल्डिंग, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसेस के लिए मिनी सेक्रेटेरिएट, और जितने भी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स के ऑफिसेस हैं उनके लिए ऑफिसेस वगैरह। यहाँ डिस्ट्रिक्ट सारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन यही रही, जुडिशरी भी यही रही। तो एक शुरुआत हुई डिस्ट्रिक्ट को ऑगमेंट करने के लिए। जितनी भी ऑगमेंटेशन हो गई, कुछ चेंजेस भी हो गई, वो मेरे टेन्योर में हो गई। डिस्ट्रिक्ट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उसमें मिनी सेक्रेटेरिएट उस वक्त इनकम्प्लीट था, मेरे टेन्योर में कंप्लीट हो गया। उमर साहब ने वहाँ संग बुनियाद रखा, बाद में पहले तो रखा था किसी ने संग बुनियाद, तो कमीशन उन्होंने किया। उसके अलावा जो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, तो उस पर काम शुरू, उसमें झगड़ा था कि गलत जगह लोकेशन एक चूज हो गई थी, उसमें टाइम लगा, उस और डिलेड कंस्ट्रक्शन हो गया। लेकिन एक अच्छी बात उसमें निकल गई मेरे टेन्योर में, जब हमने शिफ्ट किया तो वहाँ थोड़ा सा बेस बनाया गया था, उस पर सरकारी रकम खर्च हो गया था, करोड़ एक से ऊपर ही। तो उस वक्त सवाल आया कि ये करोड़ कहाँ एडजस्ट होगा, अगर लोकेशन चेंज होती है। तो फिर हमको एडिशनल एक बोनस में AMT स्कूल मिल गया, वहाँ AMT स्कूल की बुनियाद रखी गई, और हॉस्पिटल और अड्डा वहाँ ईदगाह के सामने आज तो है, वहाँ वहीं फंक्शनल है। ये आए, और इस मेरे टेन्योर में वटपोरा में वो जो पॉलिटेक्निक कॉलेज है वो आया। KVK में डिस्प्यूट था, मंगनीपोरा में KVK बहुत पहले वहाँ बना था, लेकिन डिस्प्यूट एक था पोतुशे के रेजिडेंट्स के साथ, लैंड और जॉब्स के रिलेटेड। वो डिस्प्यूट किसी हद तक मेरे टेन्योर में हल हो गया। मुफ्ती साहब ने बुनियाद डाली कॉलेज की, यहाँ पोतुशे में डिग्री कॉलेज जो है हमारा, जहाँ को एजुकेशन है अभी, तो वो भी तकमील को पहुँचा मेरी ही टेन्योर में। उसके अलावा 9 ब्रिजेस, 9 हाई स्कूल, 42 प्राइमरी स्कूल्स नए, और आंगनवाड़ी सेंटर्स। ये एक प्रोसेस होता है, और हम लोकेशन देते हैं एज रिप्रेजेंटेटिव्स कि कौन सी हैबिटेशन नेगलेक्टेड है, कहाँ जो है उस वक्त अंजाम दिया अच्छी तरह से, लोगों के जो काम, मैं मुतमईन हूँ, मैंने शोर नहीं किया। लोगों को जब आप कहते हैं मेरे टेन्योर में आपके गांव में ये हुआ, एक्नॉलेज करते हैं, क्योंकि हमने उस वक्त एक कल्चर ये नहीं किया कि हर जगह पत्थर लगे, रिबन लगे। जैसे आप ईदगाह में मैंने 10 लाख रुपए दे दिया अपने CDF से, वो करोड़ों में खर्च किया है, और दयानतदारी से खर्च किया है। नुसू में लगा, कहीं बोर्ड नहीं लगा है। जहाँ भी हमने
کہیں فینسنگ کی، گریو یارڈس کی، کہیں کوئی مطلب پارک ہمارا ہے نشاط پارک، اس میں بھی میں نے کنٹریبیوٹ کیا. اٹھوتو کا جو ٹورزم کا انفراسٹرکچر ہے میری ٹینیور میں 8-9 کروڑ کا انفراسٹرکچر میری ٹینیور میں ہوا. تو اگر بات کریں اب قریباً 10 سال کے بعد جو ہے جموں کشمیر میں اسمبلی انتخابات ہونے جا رہے ہیں، تو کس طرح سے اس چیز کو دیکھتے ہیں؟ انتخابات ہوئے لیکن اس میں ایک مایوسی ہے. ایک انتخابات ہونا ٹھیک ہے، ایک خوشی یہ ہے کہ 10 سال کے بعد چلو دیر سویر تو ہو گئے، لیکن ایک مایوسی یہ ہے کہ جس لیجسلیٹو اسمبلی کے لیے آج انتخابات ہو رہے ہیں وہ اسمبلی نہیں ہے جو پہلے تھی. پاورز میں بہت بڑا فرق ہے، بہت انتر ہے، اور لیجسلیٹو کاؤنسل بھی نہیں ہے، اسٹیٹ بھی نہیں ہے، ڈائریکٹ انٹرونشن بھی ہے سینٹرل گورنمنٹ کا لیجسلیٹو پروسیس میں بھی. جی. تو کانسٹیٹیوشنل ہیڈ جو ہمارے ہیں ایل جی، ہی لکس مور امپاورڈ دین واٹ وڈ بی آور چیف منسٹر. تو یہ سب چیزیں دیکھنی ہے. اور جو الیکشن ہوگا سینٹرل گورنمنٹ کی بھی طرف سے ایشورنس ہے کہ یہ ایشوز ایڈریس ہوں گے. اگر یہ ایڈریس ہوتے ہیں تو جو اسمبلی نئے آئے گی پھر سے جو انڈیجینس ایک ڈیزائر ہوتا ہے کہ ہم اپنی سوچ کے مطابق، کیونکہ ہر اسٹیٹ کا یہ ملٹی ڈائمینشنل معاملہ ہوتا ہے سارا فیڈریشنز میں، یہ کلچر الگ الگ ہے، سینسٹیوٹیز الگ الگ ہیں، ڈیمانڈس الگ الگ ہیں، نیڈس الگ الگ ہیں. تو ان کے مطابق فیڈریشنز میں ایک اٹانومی ہوتی ہے تاکہ وہاں یہ سینسٹیوٹیز اور لوکل نیڈس وہ اکوموڈیٹ ہوں. اگر ایسا ہوتا ہے تو کام کر پائیں گے اچھے طریقے سے وہ لوگ جو ریپرزنٹیٹیو بنیں گے. بانڈی پورہ کانسٹیچوئنسی کی بات کریں تو بانڈی پورہ کانسٹیچوئنسی میں آپ کتنے مضبوط ہیں؟ دیکھیے لوگوں کو فیصلہ کرنا ہے، میکنگ کلیمز ٹال کلیمز نہیں چلے گا. لیکن میں جہاں جا رہا ہوں، چاہے میں کسی انڈیویجول سے ملوں، چاہے کسی کمیونٹی لیڈر سے ملوں یا عام آدمی سے ملوں، مزدور ہو، ماہی گیر ہو، گوجر بستی سے تعلق رکھتا ہو، کشمیری ہو، ماں ہو، بہن ہو، بیٹی ہو، بہت پیار ملتا ہے. ریسپانس اچھا ٹھیک آ رہا ہے؟ بہت پیار ملتا ہے، بہت پیار ملتا ہے. میں ان کا شکر گزار ہوں اور مجھے لگتا ہے انشاءاللہ جیت ہماری. تو کئی سارے کینڈیڈیٹس جو ہے میدان میں ہے یا امیدوار جو ہے وہ میدان میں ہے، تو نظام الدین بٹ صاحب اپنے آپ کو کہاں پہ دیکھتے ہیں؟ دیکھیے میں تو آئی ڈونٹ بلیو ان میکنگ کمپیریزنز. انڈیویجولز تو اپنی اپنی کسی خصوصیت کے بھی مالک ہیں، خامی بھی ہوتی ہے. بالکل. تو میں کمپیریزنز نہیں کرتا ہوں، شاید مجھ سے بہتر لوگ بھی ہوں گے. ہیوملٹی نہیں ہے یہ، اٹس اے فیکٹ. لیکن جہاں گیون مائی ایج، ایکسپیرینس اینڈ ہیونگ ریمینڈ ود میڈیا اینڈ پالیٹکس، بہت زیادہ ایکسپوجر ہے، بہت زیادہ ایکسپوجر ہے. سسٹم کی، اسٹیٹ کرافٹ کی، لوکل نیڈز کی بہت زیادہ انڈرسٹینڈنگ ہے، سینسٹیوٹیز کی انڈرسٹینڈنگ ہے. ایسا نہیں ہے کہ میں کوئی بڑا دعویٰ کرتا ہوں، لیکن ہر ایک کو سیکھنے کی بھی ضرورت ہے. شاید کمیاں بھی ہوں گی، سیکھیں گے انشاءاللہ. تو اس سے پہلے جب اسمبلی انتخابات یہاں جموں کشمیر میں ہوا کرتے تھے تو بہت کم امیدوار میدان میں ہوتے تھے، تو آج آپ کو لگتا ہے کہ بہت زیادہ امیدوار میدان میں ہے؟ جو یہ پارٹیسپیشن کینڈیڈیٹس کے لحاظ سے اس کا ایڈوانٹیج بھی میں دیکھتا ہوں، ڈس ایڈوانٹیج بھی دیکھتا ہوں. ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ایوری بڈی وانٹس ہیز اے ڈیزائر کہ میں لوگوں کی خدمت کروں، اور یہ ایک پلیٹ فارم ہے اسٹیٹ پاور کے ساتھ، اسٹیٹ سسٹم کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ کے اور لوگوں کا مینڈیٹ حاصل کر کے میں بھی کچھ کر پاؤں. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ایٹ دی ہسٹنگس جب الیکشن شروع ہوتا ہے تو پاپولر پارٹیز اور پاپولر انڈیویجولز ہی ڈی ڈے پہ کچھ کر پاتے ہیں. اور جو نئے لوگ ہیں، جو نئے لوگ ہیں، ان کا آنا تو ویلکم، لیکن سفر بڑا لمبا ہوتا ہے.
तो गुज़श्ता कुछ दिन पहले आपने अपना जो है मैनिफेस्टो भी आवाम के सामने रखा, तो जो आपको इस वक्त बांडीपुरा की आवाम देख रही है, बांडीपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग देख रहे हैं, हमारी चैनल के वसादत से हमारा पहला इंटरव्यू है आपसे, तो मैनिफेस्टो में किन मसाइलों पे जो है ज़्यादा जोर दिया गया है और क्या कुछ वहाँ पे मसाइल रखे गए हैं मैनिफेस्टो में आपकी? देखिए, ज़्यादा वजाहत करने की ज़रूरत है। फर्स्ट प्रायोरिटी होती है जो भी प्रेजेंट हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको आगमेंट करने की ज़रूरत है। ब्रिजेस बने, कहीं ना कहीं कमी होगी। वुलर प्रोजेक्ट आया लेकिन अभी उसका जो इस्तिफादा लोगों को मिलना चाहिए, माहीगीरों को मिलना चाहिए या वुलर को मिलना चाहिए, अभी तक नज़र में नहीं आता। इसी तरह जॉब ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स जो भी हैं यहाँ छोटे छोटे, क्योंकि यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन है नहीं, यहाँ एग्रीकल्चर सेक्टर कमज़ोर है, यहाँ हार्टिकल्चर सेक्टर कमज़ोर है, यहाँ एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर की गुंजाइश है लेकिन उसकी तरफ अटेंशन नहीं गया है। तो ये जो चाहे जॉब ओरिएंटेड हूँ, चाहे वेलफेयर रिलेटेड हूँ, चाहे ऑगमेंटेशन रिलेटेड हूँ, इन्वायरमेंट एक बड़ा प्रोजेक्ट है, इस सब को लेके लोगों को क्या डिटेल्स बताएं, लेकिन हर चीज़ पे नज़र है। और अगर अल्लाह ताला ने मौका दे दिया, जो कमियां खामियां रह गई थी मेरे पिछले टेन्योर में, मेरी इच्छा भी है, मेरा ख्वाब भी है, मेरा इरादा भी है और अल्लाह ताला से मैं फजल का तलबगार हूँ, मैं कर पाऊँ वो जो मेरे ख्वाब हैं उनकी तकमील हो। तो निज़ामुद्दीन साहब, कल जाके अगर आप एमएलए यहाँ पे बनते हैं तो पहले मसाइल आप कौन से उठाएंगे? खासकर अगर बात करें यहाँ, जब हम बांडीपुरा से आए तो बांडीपुरा में हमने यहाँ पे गरुड़ा ब्रिज देखा, तो एक ही समय पे जो है एक ही गाड़ी पार होती है, तो आपको लगता है कि उस पर भी काम करने की अशद ज़रूरत है, क्योंकि बांडीपुरा के साथ वो श्रीनगर के साथ जो है कनेक्ट होता है। बाकी मैनिफेस्टो में आपने देखा होगा कि हमको हाईवे चाहिए, हमको ये बाईपास चाहिए, जहाँ हैबिटेशंस अनकनेक्टेड हैं उनको कनेक्ट करने की ज़रूरत है। लेकिन मैं एक जुमले में समझाऊंगा, कुछ लॉन्ग टर्म होते हैं, वर्क्स एक ही दिन में कंप्लीट नहीं होते। जो भी नामुकम्मल काम है या जो भी ज़रूरी काम है इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड, वो तो फोकस में है ही। लेकिन कुछ इमीडिएट जो एक सेकंड में सरकार हल कर सकती है, सबसे ज़्यादा है एमनेस्टी। जो जवान बंद हैं, जो बेटियां बंद हैं, एमनेस्टी की बात होगी पहले। हम कोशिश करेंगे कि सब लोग रिहा हों विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। यहाँ एक विवाद रहा है तो इसमें तमीज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये कम जुर्म का है तो वो ज़्यादा मुजरिम है। जो भी बंद हैं, चाहे केसेस हों या ऐसे ही इन्वेस्टिगेशन में हों, एक तो वो। दूसरा पेंशन का मामला है, आपने देखा ही होगा। तीसरा डेली वेजर्स की रेगुलराइजेशन का मामला है, वो भी देखा होगा। इसी तरह डेली वेजर्स के अलावा जो ब्लॉक से रिलेटेड भी हैं, दूसरे तीसरे सेक्टर्स में भी इस तरह के मसाइल हैं। एम्प्लॉइज़ के जो एम्प्लॉयमेंट में हैं लेकिन अभी एम्प्लॉई नहीं माने जाते हैं, कैजुअल लेबर्स हैं, डेली वेजर्स हैं, आशा वर्कर्स भी है, ठीक। और ये इमीडिएट कंसर्न की चीज़ें हैं। या वेलफेयर का जो कंपोनेंट है उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। बेवाएँ हैं, यतीम हैं, उनको एक मिनट में बढ़ाया जा सकता है, गवर्नमेंट कंसिडर करे तो। यानी इमीडिएट कंसर्न के जितने भी मसाइल होंगे रिलीफ और हीलिंग के, एक तो वो, दूसरा जो लॉन्ग टर्म है, चाहे एक महीने में कंप्लीट हो, एक साल में कंप्लीट हो, 5 साल में, 10 साल में, उनकी बुनियाद पड़नी चाहिए। तो सर, अगर बात करें जब यहाँ पे डिलिमिटेशन हुई तो बांडीपुरा के कुछ इलाके जो है सोनावाड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ जोड़ दिए गए, तो आपको लगता है कि इम्पैक्ट पड़ा? इम्पैक्ट होता ही है, एक कल्चर बना होता है। 10 साल 20 साल आप एक कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ रहे, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जुड़े रहे, पार्टीज़ के साथ जुड़े रहे, रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ जुड़े रहे, तो जब एक इलाके का दूसरे इलाके में अचानक आप ले जाओगे तो फ़र्क पड़ता ही पड़ता है। लेकिन डेमोक्रेसी में 12 लोगों को फैसला करना होता है, लकीर खींचने से उतना ज़्यादा फ़र्क
नहीं। रीच आउट की बात है, जहाँ जो हमारे साथ इलाके पड़े हैं हम उन तक पहुँचेंगे, अपने तौर पहुँचेंगे, पार्टीज़ के ज़रिए पहुँचेंगे, पॉलिटिकल वर्कर्स के ज़रिए पहुँचेंगे, इंस्टीट्यूशंस के ज़रिए पहुँचेंगे, पहुँचने की तो बात है। तो खासकर वहाँ ब्लॉक नाइद के इलाके की बात करें तो वहाँ पे कुछ ऐसे इलाके हैं, कानियारी बात करें या गुंडी बोन या बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जिनको आज भी साफ़ पानी नहीं मिलता है, या कुछ ऐसे भी लोग हैं जो टिन शेड में अभी बसर अपनी ज़िंदगी जो है कर रहे हैं। कल जाके निज़ामुद्दीन साहब अगर एमएलए बनते हैं तो उनके लिए क्या करेंगे? देखिए, मैं उस इलाके से बचपन से जुड़ा रहा हूँ जी। वो लोग मुझे अच्छी तरह जानते हैं और मैंने वहाँ पॉलिटिकल कैरियर में कुछ अच्छे काम भी किए। एक रेवोल्यूशनरी तरीका था जवानी में, तो वाकफियत है। जो आपने मसाइल गिने वो वाकई वहाँ मसाइल हैं। बिल्कुल। शागुंड हो, बोन हो, कनियारी हो, खुद नाइद खे की बात आप करोगे जो मतलब एक सेंट्रल प्लेस है इस सारे ब्लॉक की, या गुंड जहांगीर, जी। जितने भी छोटे छोटी बस्तियाँ, हैबिटेशंस, ये मसाइल हैं और मेरी प्रायोरिटी पे रहेंगे। मैं एश्योर करता हूँ वहाँ के तमाम लोगों को आपके माध्यम से कि हर एक छोटी बड़ी चीज़ को ध्यान से देखा जाएगा और दर्द से देखा जाएगा। तो जिस तरीके से यहाँ पे पार्लिमानी इंतखाबात हुए तो पार्लिमानी इंतखाबात में एक वेव इंजीनियर रशीद की यहाँ पे चली, तो असेंबली इंतखाबात का काउंट डाउन भी अब शुरू हो गया। तो आपको लगता है कि इम्पैक्ट पड़ सकता है जिस तरीके से यहाँ पे एआईपी कैंडिडेट भी खड़े हुए हैं? देखिए, रशीद इंजीनियर साहब के लिए वो वोट नहीं था, वो मैंडेट नहीं था, वो एक रिएक्शन था पिछले 10 साल की महरूमियों का, दबाव का, जो लोग समझते हैं, एक यूनिलेटरल डिस्कोर्स का जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया। तो रशीद साहब उसकी एक अलामत बन गए। लोगों ने जो गुस्सा उतारा उसी के ज़रिए उतारा। उनको कोई उम्मीद उनसे न थी न है, सिर्फ ये कि हम दिल्ली को बताना चाहते हैं कि हम आपसे नाराज़ हैं। उसने एक पॉलिटिकल पैराडियम यहाँ नए सिरे से शुरू किया। एक फ़ायदे की बात उससे ये निकली कि लोगों का मिजाज पॉलिटिशियंस को भी समझ में आ गया, दिल्ली को भी समझ में आया। और आज अगर इलेक्शंस होंगे बहुत फेयर होंगे। ये नहीं होगा कि वो इमोशनल वेव के लिए भी स्पेस दे दो किसी को, एक्सप्लॉइट कुछ एरियाज़ को किया गया उस वक्त, जिससे एक नया मैंडेट सामने आया। उन चीज़ों में आज एक लेवल प्लेन फील्ड होगा। सोच की बात है, जवान भी सोचेगा, माँ बहन भी सोचेगी, पॉलिटिकल पार्टीज़ ने भी अपने आप को संभाला संवारा है। उसी लिहाज से आई डोंट थिंक उसको भी अब स्ट्रगल ही करना पड़ेगा। तो खासकर अगर अब बात करें तो क्या पैगाम रहेगा आवाम के लिए, बांडीपोरा कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग जो आपको देख रहे हैं? बांडीपोरा से गुजारिश करूँगा ये कि सोच समझ के फैसला दे दें। आप मालिक हो, आपको 6 साल के लिए एक नुमाइंदा चुनना है। ये कई लिहाज से आपका सरबराह होता है, आपकी पहचान होता है। सोच समझ के फैसला करें। वन हु कैन बी योर आइडेंटिटी, वन हु नोज यू, यू नो हिम, वन हु डजंट एक्सप्लॉइट, वन who is always close to you, available to you, accessible to you with honesty and sincerity. फैसला आप लोगों को करना है, आधार यही है, तजुर्बा, दियानत, अखलाक और विजन और तरीका काम करने का। ये आधार रखिए और अपना नुमाइंदा चुनिए। तो अब आखिर पे सवाल एक और है, खासकर जब यहाँ पे असेंबली इंतखाबात हुआ करते थे या कोई भी ऐसे इंतखाबात यहाँ पे हुआ करते थे तो रैलियाँ उस तरह से नहीं हुआ करती थी जिस तरीके से आज रैलीज जो है होती है। तो क्या तबसरा इस बारे में करना चाहिए? चुनाव अचानक हुए, 10 साल के बाद हुए, कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं थी। बड़ी बड़ी पार्टियां भी, एक आध वर्कर गाँव का जुड़ा रहता था, लेकिन आम लोगों पर सियासी पैरामीटर्स के हिसाब से, सियासी पैराडाइम के हिसाब से, सियासी इश्यूज़ के हिसाब से कोई कनेक्ट नहीं था। जनरल इश्यूज़ थे, 370, 35A,
BJP, कांग्रेस, लोकल रीजनल पार्टीज़, NC, PAG, इत्तेहाद, ये इस तरह के इश्यूज थे एक जनरल पैराडियम में, लेकिन आम आदमी तक रसाई किसी पॉलिटिकल वर्कर या किसी पॉलिटिकल पार्टी की नहीं थी कि वो किसी पर्टिकुलर इशू पे या किस इश्यूज पे लोगों को अपने साथ चलाए, जोड़ सके। अब तो लोगों के पास हर कोई जाता है और लोग भी चर्निंग करेंगे इश्यूज, आइडियाज़ की। मुझे लगता है कि ये असेंबली चुनाव अगर जल्दी में ही हुआ तो अच्छा हुआ, लेकिन लोग अब बहुत अवेयर हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, सोशल मीडिया है, हर तरीके से लिप टू लिप भी बात पहुंचती है। यहाँ ज़्यादा पॉलिटिकली कॉन्शियस रहते हैं लोग, तो एक तरीके से एक बदलाव की जो ज़रूरत है वो इंशाल्लाह अच्छे ढंग में आ जाएगा। चलिए सर, वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, बहुत बहुत। तो मेरे साथ बातचीत कर रहे थे जनाब निज़ामुद्दीन साहब, जो कि यहाँ पे अलायंस कैंडिडेट है, यानी कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की बांडीपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर असेंबली इलेक्शन कंटेस्ट करने जा रहे हैं। इनसे हमने कई सवालात किए और बाज़ाब्ता तौर पर जवाब तलब करने की भी कोशिश की। तो इसके साथ ही इस स्पेशल इंटरव्यू में इतना ही। दीजिए अपने मेज़बान सोहेल मकबूल को इजाज़त। खुदा हाफिज़।